Bhopal is a city located in the state of Madhya Pradesh, in the middle of the Indian subcontinent. The city was the capital of the former Bhopal state, a princely state of the British, ruled by the Nawabs of Bhopal until India's independence in 1947. The turning point for the city, however, came on the 5th of December, 1984. The scenes are simply hellish. So much suffering from India's invisible killer. At one point, an official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. The enormity of the tragedy of Bhopal, India is becoming more apparent this morning. Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects such as blindness and sterility. Union Carbide insecticide plant has been closed, of course, now. Outside, vultures devour the carcasses of animals killed by the fumes. The Union Carbide pesticide manufacturing plant leaked methyl isocyanate gases, claiming a sum total of 3,787 deaths. Almost 40 years later, however, the city faces a new ongoing threat, and this time, the inhalation is intentional. If you were among the population in India that had access to the internet in 2016, this kid you could not have missed. नाम क्या है तेरा? कमलेश। कहाँ का रहने वाला? भोपाल। यहाँ पे कैसे आया? भक्के। ढूंढ 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 ढूंढ। कितनी उम्र कितनी है बेटा तेरी? हमारी 13 साल। सोल्यूशन कब से पी रहा है बेटा तू? जय कोई 2-3 साल से। शुरुआत कैसे करी इसकी? शुरुआत पहले हम पीते थे इससे बड़ी से ना सिगरेट से सिलोचन ये ट्यूब वे सिलोचन सीख गए। ट्यूब क्या चीज होती है? पंचर जोड़ने वाली। नशा कैसे हो जाता है? ऐसे होता है बहुत भयंकर, दारू से भी भयंकर होता है। लगा के देखिए। Kamlesh since then has been subject to wide mass media, TikTok remixes, नाम क्या है तेरा? कमलेश। and memes. The cloud is never ending, but the problem still persists. The kid, however, as of 2024, is missing, or most likely with the lack of the seriousness to the issue, dead. What's this got to do with me? I'm glad you asked. It all started when me and a few batchmates were scouring the streets of Bhopal when we heard this. स्लम एरिया के बच्चे जो फुटपाथ पर रहते हैं ना, ये सिलोचन का नशा करते हैं, वो कपड़ा सूंघते हैं ना, इनको टारगेट करो। आपको पाली ज़ॉम्बीज़ वो नशा करते हैं, वो बहुत ही वो सिलोचन ज़ॉम्बी है साले। सूंघते हैं। अच्छा। थोड़ा सी देर में झगड़ा करते हैं वो। Now that got me thinking. If a problem was identified almost 8 years ago and it's still spoken about, there's got to be some light shone onto it. I'm no reporter, I'm no journalist. What I am, however, is just Vijay Sarthi. So I threw on some kicks, made myself a nice cup of chai, and then I got to work. After a long day of searching, getting weird looks, running around shady enough places and leads, I found pretty much what I was looking for.
What followed was quite the experience. The person you see is 18 years old. His lungs have irreparable damage, and from what I'm allowed to tell, that goes for most of his organs. And well, I'll let him speak for himself. बयान में जाऊंगा, बयान में पेपर डाल के आऊंगा, पेपर डाल के आया हूँ। He gets a fixed $120 from his employer. A third goes into his food and 2/3 into his vices. दुनिया का नशा से बिकता है। अभी आएंगे बहुत सारे लड़के आते हैं अपन पास तो जीने वाले बहुत। तेरा नाम क्या है? सनी। शनि। तो ये बता 2-3 महीने से सॉल्यूशन शुरू किया था, किसने पकड़ा? एक लड़के ने। कौन? पता नहीं कौन। पता नहीं कौन? अरे एक लड़का उधर ही रहता मेरे मोहल्ले में। मोहल्ले में? हाँ। और स्कूल जाते हो? जाता हूँ ना। कहाँ? गेम कौन में। तो फिर नशा क्यों करते हो फिर? तुम्हारा जिंदगी में मसला क्या है कि तुम नशा? हाँ। मतलब तेरे को कौन सी टेंशन है कि तू नशा करने जा रहा है? अच्छा ऐसी लाइन है। हाँ। मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है ये बात तो। क्या? हाइट नहीं बढ़ रही मेरी। हाइट नहीं बढ़ रही? हाँ हाइट नहीं बढ़ रही? हाइट नहीं बढ़ा तो दूध पी। हाँ। तुम्हें लगता है तुम्हारा हाइट छोटी है? हाँ। फिर इसलिए पी लेता हूँ गम में। छोटी होने से गम महसूस होता है? और क्या। भाई दीदी बहन कोई है? सब है। कितनी? एक भाई है और एक बहन है छोटी। क्या करते हो? बिजनेसमैन। लाइट डेकोरेशन टेंट हाउस। बड़े भैया? हाँ पापा का है। बड़े भाई भैया ऑफिस में बैठते हैं। अच्छा, यहाँ रहे तो? यहाँ नहीं रहता, मंडी द्वीप में रहता हूँ। मंडी दी? हाँ। हीरो दिख रहे हो यार, 1 मिनट। हाँ लो लो। हाँ। रुको। उफ, रख लो इधर एक बार। हाँ। आकाश कहाँ रहता? क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई नहीं करते तो फिर स्कूल क्यों आते हो? तो स्कूल आता है? स्कूल नहीं आता? क्या करते हो? कबाड़ा था। भाई बहन है? भाई है। सोल्यूशन करता है? कितनी देर से? कब से पीता है सोल्यूशन? फिर भी 1 महीना 2 महीना 1 साल कब से? 1 साल। कुछ और करते हो? बस सोल्यूशन। पैसे कहाँ से मिलते हैं? कबाड़े से। और रेटा करता कहाँ, सोता कहाँ? मंडी में। तुझे पता है सोल्यूशन से क्या होता है? ये सारा लगता पीने के बाद मतलब कैसा नशा रहता है? नहीं होता। बस करता है? बस करता। तो तुझे क्या टेंशन है सोल्यूशन पीता तू? हाँ? चलो बात। The reasoning behind the kid's docility would usually be shyness, but the poor soul in front of me was in fact very out of it. Speaking to kids that couldn't recite the alphabet but were higher than their aspirations put some perspective. The supply and purchase is astonishingly easy. A local known face of the slum goes to a puncher shop, buys it in bulk from an allied acquaintance, and well, you know the rest.
मैं डॉक्टर भूषण सिंह, कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट। मेरी स्पेशलिटी है एडिक्शन पे, डी एडिक्शन की स्पेशलिटी है। प्रयास है नशा मुक्ति मनोचिकित्सा केंद्र हमारा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर हम मरीजों को जो एडिक्ट पेशेंट होते हैं, साइकियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर आकर के ट्रीटमेंट देते हैं, देन उनका पुनर्वास की प्रक्रिया पे काम करते हैं। क्योंकि ये सोल्यूशन स्निफ का है या पेट्रोल का है या अदर केमिकल स्निफ करने का प्रोसेस होती है, ये थोड़ा सस्ता और इजी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो स्लम के जो चिल्ड्रंस होते हैं ज़्यादा इसमें ऑक्यूपाइड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लंबे समय जब एडिक्ट होते हो तो मल्टीपल बहुत सारे कोमॉर्बिड डिसीज आ जाते हैं बच्चों को एक बार। क्योंकि बच्चों को ड्रग्स में लाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ा सा कमज़ोर रहती है उस समय, जो उनका ब्रेन है प्रॉपरली उतना डिसीजन मेकर नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट एज होता है 14 to 18 ईयर्स के आसपास, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट एज है उनकी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं है कि हमको क्या करना है। तीसरा चीज़, उनको ऐसा लगता है कि हम नशा मुक्त केंद्र में लेके गए हैं तो 3 महीना बंद कर देने से 6 महीना बंद कर देना ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट ओरिएंटेशंस लोगों के जो विचारधारा है वो ट्रीटमेंट ओरिएंटेशन पे नहीं है। उनका ओरिएंटेशन है कि बंद कर दो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि मैक्सिमम जो नशा मुक्ति केंद्र है, रिहैब सेंटर से अनट्रेंड अनप्रोफेशनल्स द्वारा बन के जाते हैं, जिसकी वजह से माल प्रैक्टिस होने की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर एक फियर, एक फोबिया डेवलप हो जाता है रिहैब सेंटर के। बेसिकली ये आपका लीगल इशूज़ है ये, और इसमें कुछ कहना अच्छा नहीं है, कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन लीगल इशूज़ है ये। गवर्नमेंट को इसको फोकस करना चाहिए कि कैसे ये इजीली डोर टू डोर अवेलेबल है ना। कोलार से हूँ, ए सेक्टर सर्वधर्म। और आप यहाँ किसके लिए दाखिल हुए थे? नशा गांजा पीता था और दारू, सिगरेट और गुटखा भी। सिलेक्शन वगैरह ट्राई? हाँ, एक बार करा। तो आपने सोल्यूशन या हाफिज? ऐसे ही ट्राई करा था। कैसे? ऐसे ही रोड पे 2-3 लड़के जा रहे थे सुनते सुनते, तो मैंने भी। मतलब तलब क्या रहती कि बस नशा करना या वरना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर टूटन वगैरह कुछ नहीं लग रही थी, बस ऐसे ही मन शौक। सोल्यूशन में क्या होता है? सब चीज़ें डिलीट मतलब अपने माइंड से पूरी चीज़ें हट जाती है, पूरी चीज़ें जो माइंड में जो भी मेरे को पता है ना कि मैं घर मेरा यहाँ पर है, वो भी भूल जाता हूँ। मैं सब भूल जाता हूँ कि मतलब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ वो भी भूल जाऊँगा। हाँ, सिर्फ ऐसे ही चलते रास्ते में 2-3 लड़के थे ऐसे बेचारे पन्नी बीन रहे थे वो, तो मैंने उनसे बोला तो मेरे को भी करना है ऐसा। हाँ, मैं भी पहुँचा उनके पास। सही। और उसका तो आप प्रोड्यूसर हो? नहीं, कोरियोग्राफर बनने का सोचता हूँ मैं। अच्छा, खुद ही रैप अच्छा करता है। अच्छा जी। आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? एनसिस्टन। और मैं स्कूल जाता था, तो स्कूल जाते जाते मेरा दोस्त था, वो सिगरेट विगरेट पीता था, उसने भी मेरे को 1-2 बार सिगरेट पिलाई, तो फिर मैं शुरू कर दिया सिगरेट वगैरह पीना। तो एक मेरा दोस्त बना फिर धीरे से, पहले शॉर्ट स्ट्रीट में रहता है, तो उससे अच्छी दोस्ती हुई। और फिर उसके बाद उसने मुझसे ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि गांजा पिएगा क्या? तो मैंने भी हाँ बोल दिया, शौक में हाँ बोल दिया। मैंने भी हाँ पी लूँगा ना, क्या होगा। जिंदगी में बुराई कहाँ से आ रही थी, जहाँ पे स्ट्रेस आ रही थी या एंग्जाइटी आ रही थी? बुराई कहीं से नहीं आ रही थी, बस मेरे को बाद में मेरे को कुछ पता चला कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, और मेरे को थोड़ा सा प्रेशर पड़ा माइंड में कि कोई नहीं है तेरा और तू अकेला है, क्या कर रहा है ये, मतलब ये लोग बेवकूफ़ बना रहा है। मेरे एक्चुअली मॉम डैड नहीं है, तो मेरे को एकदम जब पता चला तो मेरे को भी यकीन नहीं हुआ। मेरे को लगा सब ऐसे ही बोल रहा है ये वो मोहल्ले वाले, मतलब। तो मैं उनकी बात को मजाक में लेता था, अरे मेरा जा यार। फिर उसके बाद जब मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ कि यार घर वाले मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके मेरे को अंदर से बेकार लगने लग गया, तो मैं और ज़्यादा ही नशे की तरफ घुस गया। ओके, तो आप अनाथ हो और आपकी एडॉप्शन हुई थी? हाँ। ओके, तो आप किसके साथ रहते थे? नाना नानी। अच्छा, ओके। तो इससे आपको जब पता चला तो उससे कोप करने के लिए आप उस तरह? हाँ, और ज़्यादा ही घुस गया। किसी से बात करना चाहते हैं कि अपना मनोभाव या स्वभाव किसी से पूछना चाहते हैं कि कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आपके पास घर वाले कोई पूछता है आपसे या आपके दोस्त ही थे? नहीं, मेरे घर वाले नहीं, आज तक कभी घर वालों ने नहीं पूछा खैर। बस जो आजू बाजू के पड़ोसी थे उन लोगों ने मेरे को मतलब बताया कि ऐसा हो रहा है, तेरे घर वाले नहीं है ये वो।
बाकी मेरे को नहीं पता था ना, मेरे को ऐसा उन्होंने भी बिलीव नहीं होने दिया कि अब घर वाले नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, सब के साथ मैं अपने अंदर ही रखता था बात। और फिर मैंने कुछ टाइम के बाद अपने दोस्त लोगों को सबको छोड़ दिया बहुत दूर। मैंने खुद वो उनका कॉल भी आता तो मैं नहीं उठाता, और बहुत सारे मतलब सब दोस्त यारी सब भी बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फिर उनके साथ बैठूंगा, फिर ये लोग लड़ाई वड़ाई करेंगे एक दूसरे से ही आपसी में, और फिर उसके बाद केस होंगे। कोई मतलब नहीं है, फंसना है बेजबरन, जेल काटो, ये करो वो करो, उससे बढ़िया कोई मतलब नहीं, अकेला बैठो सुकून से रहो, सबसे बढ़िया। As my appetite for the search for the whys and hows end, I can't help but feel a bit dissatisfied with it all. I keep pondering as though I watch this from the outside. Is the solution more regulation or education? Is constant escapism and consumption the answer to late-stage capitalism? Will these kids ever take a breath of fresh air without the weight of the world seeping into their shoulders? And most importantly, for the ones that act smart like me in the back watching this, asking the most important question of all, were they high when they made this? സ്തോത്രം, ഇയാൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. നോക്ക് ഘടികാരം ഏതാണ്, കാലം നിലത്ത് നിൽക്ക്, അരിവെപ്പ് only on Sundays. ഇത് നല്ല ദൂത്, കുറച്ചൊക്കെ മഞ്ഞ പിറക്കിയെടുക്ക്, നോക്കി തിന്ന്. പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവ്, പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവ്, വെറുതെ നാട് നന്നാവണേ. പിള്ളേരൊക്കെ പൊളിയാണ്, കളിയാണ്, തഹസിൽദാറിന്റെ പുരസ്കാരം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാ. ആ ചെറിയ സ്പാനർത്താ തല ഒന്ന് ചരിച്ച്, ഇപ്പൊ ശരിയായ യായ ഇനി വീഞ്ഞും പഴം ഈ കൂട്ടത്തിൽ കള്ളന്മാരി ഇല്ലെങ്കിൽ വന്നാ തരാ പറ.